नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। आज 27 फरवरी को कमलनगर तालुका कन्नड़ साहित्य परिषद की ओर से कन्नड़ साहित्यिक सम्मेलन किया गया आयोजित। मंत्री प्रभु चौहान ने किया उद्घाटन। कर्नाटक में दिखी पीएम मोदी और येडियुरप्पा की जुगलबंदी, जन्मदिन पर दिया खास तोहफा। शिवमोगा एयरपोर्ट के उद्घाटन पर बोले पीएम मोदी, अब हवाई चप्पल पहनने वाला भी करेगा हवाई यात्रा। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट में किया गया पेश, सीबीआई ने मांगी 5 दिन की हिरासत। उमेश पॉल हत्याकांड का आरोपी अरबाज पुलिस के साथ मुठभेड़ में ढेर। अब समाचार विस्तार से। कमलनगर तालुका कन्नड़ साहित्य परिषद की ओर से आज सोमवार 27 फरवरी को कमलनगर में महात्मा गांधी स्कूल परिसर में पहला कन्नड़ साहित्यिक सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का उद्घाटन मुख्य अतिथि राज्य पशुपालन मंत्री प्रभु चौहान ने दिया जलाकर किया। श्री गुरु बसवा पट्टदेवरू, प्रशांत मठपति, सुरेश चंदशेट्टी व दूसरे अतिथि रहे। इस सम्मेलन में भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर राज्य पशुपालन मंत्री प्रभु चौहान ने संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रभु चौहान ने सभी तालुकों के छात्रों को जून के महीने में नोटबुक्स देने की घोषणा की। साथ ही उन्होंने तालुका औराद और तालुका कमलनगर के स्कूलों को विभिन्न सुविधाएं देने की घोषणा की। इस अवसर पर प्रभु चौहान ने मीडिया से बात करते हुए इस कन्नड़ सम्मेलन के बारे में बताया। केपी न्यूज के कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಾನು ಗೌರವ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಮೇಶ। ಆಮೇಲೆ 2009 ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನೋಟ್ಬುಕ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ। ಈ 6 ವರ್ಷ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇದು ಕೋವಿಡ್ ಇವು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ। ಮುಂದಿನ 2023 ಜೂನ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೋಟ್ಬುಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ। ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕಾ ಕಮಲನಗರ ಮತ್ತು ಔರಾ ತಾಲೂಕಾ ಪ್ರತಿ ಶಾಲೆಗೆ 5 ನೋಟ್ಬುಕ್ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಪಕ್ಕ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಪಕ್ಕ 2009 ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ। ಎಜುಕೇಶನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಗಟ್ಟಿ ಆಗಬೇಕು। ಎಜುಕೇಶನ್ ಆದ್ರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ। ಎಜುಕೇಶನ್ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಕ್ಕಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಓದ್ತಾರ। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಪತ್ರಿಕಾ ಮುಖಾಂತರ, ಫೋನ್ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ರಾಜ ಹುಲಿಗೆ ಹೋನೆ ಅವರಿಗೆ ನಾನು 7:30 ನಾವು ಶುಭಾಶಯ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ। ಅದು ಯಾಪ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸರ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ। ಒಂದ್ ಕಡೆ ಶಾಲೆಗಳು ಇರಲಿ, ಆದ್ರೆ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಜೀವ ತುಂಬುವಂತ ಕೆಲಸಗಳು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಮೊನ್ನೆ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಒಂದು ವಿಧೇಯಕ ಮಂಡನೆ ಆಗಿದೆ ಬಂಧುಗಳೇ। ಇವತ್ತು ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳದು। ಗಡಿ ಭಾಗದ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದವರು ನೀವೇನು ಸವಲತ್ತನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಮಾತನ್ನ ಬಹಳ ಜನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು। ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಈ ಗಡಿ ಭಾಗದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮಕ್ಕಳು ಓದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನೌಕರಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ। ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೇನೆ ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನ, ತೀರ್ಪುಗಳನ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅವ್ರು ಯಾರು ಆ ತರ ಕೊಡಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ। ಈ ರೀತಿ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಕ್ಕೆ ನಾವು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ। ಅದು 1 ಮಗು ಇರಲಿ 10 ಮಗು ಇರಲಿ, ಆ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ನಡಿಬೇಕಾಗಿದೆ। ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡೀತಾ ಇದೆ। ಈ ಸಮ್ಮೇಳನ ಬಹಳ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಟಿ ಅಲಂಕಾರವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಹಾಲ್ಕಿ ರೇಮಠ ಗುರುಗಳು ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಠಾಣಾ ಕೃಷ್ಣವ್ರ ಗುರುಗಳು ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಕುಲಪತಿ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ। ಹಾಗಾಗಿ ಸಮ್ಮೇಳನ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಸಮ್ಮೇಳನ, ಬಡಿಯ ಸಮ್ಮೇಳನ, ಸೂಪರ್ ಸಮ್ಮೇಳನ ಆಗಿದೆ। ಆಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಮಲನಗರ್ನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೂಡ 2023 ನಾನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ। ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ದೇವರ ಪುತ್ಥಳಿ ಕೂಡ ಡಿಮಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ, ಈ ಕೂಡ ನಾವು 2023 3 ತಿಂಗಳು ಆದಮೇಲೆ ಈ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ। ಬೇರೆ ಏನೇನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು, ಕಮಲನಗರ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು,
ಇಲ್ಲಿ ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಆಗಬೇಕು, ಅನೇಕ ಡಿಮಾಂಡ್ ಹೊಸ ತಾಲೂಕು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ತಾಲೂಕಾ ಪೂರ್ಣ ಡಿಪಾರ್ಟ್ ಬರಬೇಕು ನಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ 2023ರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿಪೇಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕೂಡ 100 ಕೋಟಿ ಮಂಜೂರಾಗಿದೆ. ನಾನು ಔರಾದ್ ಬೀದರ್ ನಾಂದೇಡ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಕಮಾನಂಗರ್ ಬಾಲ್ಕಿ ನಾಂದೇಡ್ ಬೀದರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. 220 KP ಮಸ್ಕಲ್ ಮಂಜೂರಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ 560 ಕೋಟಿ ಕೆರೆದಿಂಬು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೂಡ ಮಂಜೂರಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಯೋಜನಾ ಮಂಜೂರಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಔರಾದ್ ತಾಲೂಕಾ, ಕಮಾನಗಢ ತಾಲೂಕಾ ಅದ್ಭುತ ತಾಲೂಕಾ, विकासशील तालुका मारकोटी। 26 फरवरी को तालुका कांग्रेस कमेटी औराद कमलनगर की ओर से पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, जिसमें कमलनगर तालुका के कांग्रेस नेता आनंद सिंह चौहान ने औराद तालुका कांग्रेस कमेटी के इंचार्ज शरण कुमार मोदी के दौरे के अवसर पर कुछ नेताओं की ओर से सभी कांग्रेस नेताओं को बीजेपी के लिए काम करने का आरोप लगाने पर उनके आरोपों का खंडन किया। दरअसल पिछले दिनों औराद तालुका कांग्रेस कमेटी के इंचार्ज शरण कुमार मोदी और दूसरे कांग्रेसी नेताओं ने औराद और कमलनगर तालुका का दौरा किया और कमलनगर में गृह लक्ष्मी गृह ज्योति कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई तो विभिन्न सुविधाएं देंगे। इस कार्यक्रम के बाद दो नेताओं संतोष बिरादर और पंडित पाटिल ने प्रेस मीटिंग कर कहा कि कई कांग्रेस के नेता बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। संतोष बिरादर और पंडित पाटिल के इस आरोप पर यह प्रेस मीट की गई, जिसमें कमलनगर तालुका के कांग्रेस नेता आनंद सिंह चौहान ने इन आरोपों का खंडन किया और मीडिया के सामने अब इस संबंध में बात की। उन्होंने कहा कि औराद तालुका में 27 उम्मीदवार हैं और हम तालुके में उन लोगों की ओर से काम कर रहे हैं जिन्हें कांग्रेस पार्टी का आला कमान टिकट देता है। इसीलिए हम इस मीडिया के माध्यम से संतोष बिरादर और पंडित पाटिल से यही कह सकते हैं कि गलत अवधारणा को छोड़ दें। इस अवसर पर तालुका कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रेमजी कदम, तालुका कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष शांत कुमार बिरादर, मंजू सूर्यवंशी, तालुका NSUI के अध्यक्ष और अल्पसंख्यक अध्यक्ष मूसा सैयद व दूसरे उपस्थित रहे। और आज से अलीम पाशा की रिपोर्ट। तालुका कांग्रेस कमेटी औराद कमलनगर तालुका कांग्रेस कमेटी औराद कमलनगर की तरफ से आज जो प्रेस मीट बुलाया गया है, उस प्रेस मीट में आए हुए हमारे तालुका एससी घटक के अध्यक्ष प्रेमजी कदम, तालुका कांग्रेस के उपाध्यक्ष शांत कुमार जी बिरादार, माइनॉरिटी घटक के अध्यक्ष मूसा सैयद और हमारे मित्र और सभी प्रकाश यादव तालुका कांग्रेस के उपाध्यक्ष और सूर्यवंशी साहब। कल परसों जो औराद कमलनगर में शरण कुमार मोदी तालुका कांग्रेस कमेटी इंचार्ज आए थे, वहां पर उन्होंने गृह लक्ष्मी और गृह ज्योति स्कीम का कमलनगर में प्रोग्राम हुआ। तो प्रोग्राम होने के बाद हमारे वहां के संतोष बिरादर ने क्या किया, हमारा प्रोग्राम पूरा होने के बाद प्रेस मीट करके वहां पर उन्होंने बताया कि ये पूरा बीजेपी के एजेंट है, ये सभी लोग तालुका कांग्रेस कमेटी के बीजेपी के एजेंट है, ये है वो है, ऐसा बोलने से और इनको टिकट दो उनको टिकट दो ऐसा डिमांड करने से हम आज ये प्रेस मुखांतर ये बोलना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी का एक सिद्धांत है। कांग्रेस पार्टी के औराद तालुके के लीडर मीनाक्षी मैडम, KPCC के जनरल सेक्रेटरी, औराद तालुके के इंचार्ज शरण कुमार जी मोदी साहब और हमारे कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्याध्यक्ष ईश्वर जी खंड्रे साहब और कर्नाटक स्टेट के अध्यक्ष DK शिवकुमार साहब और भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन जी खड़गे साहब, वो सभी लोग स्क्रीनिंग कमेटी सर्वे करके औराद के 27 लोग आकांक्षी है, उनको जो भी करेक्ट कौन है बोल के उसका ये करके डिसीजन लेके जिसको भी टिकट देने वाली है उसके पीछे हम कांग्रेस पार्टी के सभी वर्कर सभी लोग मिलजुल के काम करने वाले हैं। हम उनका आदेश का इंतजार कर रहे हैं, मगर ऐसा किसी को इसको दो उसको दो बोल के हम आज तक नहीं बोले। और सही अगर कांग्रेस का कोई वर्कर है, सही अगर कांग्रेस का काम करने वाला है तो किसी भी आकांक्षी, हमको 27 आकांक्षी उतने ही सेम है, जो पार्टी का डिसीजन है वही डिसीजन के ऊपर हम काम करके जब टिकट फाइनल हो जाएगा तब गांव-गांव में हर बूथ में जाके हम वो कैंडिडेट को जीत के लाएंगे। और दूसरी बात क्या है, यहाँ हमारे संतोष जी बिरादार, तो संतोष कुमार कौन है वो? संतोष कुमार बिरादार माजी पंचायत समिति सदस्य, उनके माताजी थे,
और उन्होंने हमारे ऊपर बोला कि आनंद चौहान तालुका अध्यक्ष हमको किसी भी प्रोग्राम में नहीं बोल रहे। हर प्रोग्राम में मैं मैसेज उनके व्हाट्सएप में डालता हूं, जितना होता है उनको बोलता हूं। और ये कल जो हुआ प्रोग्राम, ये इमरजेंसी मीटिंग था, इसलिए हमको भी 2-3 घंटा पहले ही मालूम हुआ था, फिर भी मैं उनके व्हाट्सएप में मैसेज डाला। और ये पंडित पाटिल जो है, पंडित पाटिल बोल रहे कि मैं तालुका उपाध्यक्ष हूँ, उनके पास अगर कोई तालुका उपाध्यक्ष कोई बनाए तो उनका ऑथराइज हमको बताओ। और ये लोगों का हमारे कांग्रेस पार्टी से किसी भी काम में योगदान नहीं है, किसी भी काम में हमको सपोर्ट नहीं किया आज तक 10 साल में। और ये कांग्रेस पार्टी से कनेक्टेड किसी भी प्रोग्राम में हमको आके हेल्प नहीं किए। हमको वहाँ पर कमाल नगर में हेल्प करने वाले जो हमारे एससी घटक के अध्यक्ष है, ये है, और बहुत से आबेद अल्लाह बख्श है, हमको आज तक झगड़ा करते रहे। मगर मैं ये माध्यम से उनको बोलना चाहता हूँ, हम आज तक भी आपको एक कांग्रेस का वर्कर समझ के, लीडर समझ के, हमारे हर मैसेज देने के बावजूद भी आप अलग से प्रेस मीट करके उसको टिकट दो, इसको टिकट दो, हम तो ऐसा नहीं बोलते। 27 लोगों में से किसको भी टिकट पार्टी जिसको देगा उसका हम काम करने के लिए तैयार है। आप पर्सनल किसको भी टिकट दो बोल के किसको भी बोलो, हमको उसमें लेना देना नहीं है। मगर कांग्रेस पार्टी के प्रोग्राम को साकार करना बोल के उनको मेरा गुजारिश है। सर, वो पंडित पाटिल जो बोल रहे हैं उन्होंने कौन है? पंडित पाटिल बोल रहे कि एक पेपर में न्यूज देखा मैं कांग्रेस पार्टी का औराद उपाध्यक्ष हूँ, कमल नगर उपाध्यक्ष हूँ बोल के डाले। बसवराज अफसेटी हमारे जिला अध्यक्ष साहब ने उनको प्रेस वाले जो मैनाड़ी साहब बोल के है प्रेस रिपोर्टर, वो विजय कर्नाटका के, उनको बात करके बोले कि तालुका उपाध्यक्ष है तो इनके पास क्या प्रूफ है बोल के। ये दोनों भी, संतोष बिरादार भी और ये पंडित पाटिल भी, हमारे कांग्रेस पार्टी से कुछ भी इनका ताल्लुक नहीं है। ऐसा जिला अध्यक्ष साहब ने भी स्टेटमेंट दिया, मैं भी दे रहा हूँ। और ये लोग हमारा काम में आके ऐसा प्रेसमेंट करके बीजेपी के एजेंट है, ये है, वो है बोल के हमारा माहौल खराब करके कांग्रेस पार्टी को जिताने के बजाय कांग्रेस पार्टी को गलत दिशा में लेके जा रहे। आज ये प्रेस के मुखांतर में इतना ही बोलना चाहता हूँ, जो भी कांग्रेस पार्टी के हमारे ईश्वर साहब या हमारे सभी बड़े लीडर जो भी कैंडिडेट देंगे, हम उनको गांव-गांव में जाके, पूरे हर बूथ में जाके उनको जिता के लाएंगे। कांग्रेस पार्टी आगे क्या एक्शन लेगी उनके ऊपर? कांग्रेस पार्टी एक्शन लेने के लिए उनके पास एक तो कोई पद नहीं है, कांग्रेस पार्टी के वो जिम्मेदार किसी भी पद के ऊपर नहीं है। इसीलिए उनका हम खंडन करके इतना ही बोल रहे हैं कि इसके बाद आप ऐसा मत करो। कभी कोई पार्टी में कभी आगे हो गए, कभी कुछ काम करे आपकी नजर में? कभी भी वो कुछ भी काम नहीं, हमारे साथ किसी भी काम में सपोर्ट नहीं करे। उल्टा वो पार्टी में ग्रुपिज्म, ये वो सब वो लाइन में जा रहे, यानी कि उनको कोई पद नहीं है। वो जो हमको हमारे कर्नाटक राज्य बीदर के औराद तालुके में बादलगांव ग्राम में सरकारी उच्च प्राथमिकी स्कूल के वार्षिक स्नेह सम्मेलन का उद्घाटन राज्य के पशुपालन मंत्री प्रभु चौहान के कर कमलों से संपन्न हुआ। इस अवसर पर विद्यार्थियों की कलाकारी देखकर उन्हें प्रोत्साहित किया गया। इस दौरान मंत्री ने 36,000 रूपए पारितोषिक देकर शिक्षा का महत्व बताकर सभी लोगों को अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में ही प्रवेश दिलाने की अपील की और स्कूल के विकास के लिए सभी सुविधा देने के लिए पंचायत विकास अधिकारी को निर्देश देकर कन्नड़ माध्यम हाई स्कूल प्रारंभ करने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर कल्याण कर्नाटक के निर्देश रेवण सिद्धप्पा जलादे, डॉक्टर कल्लप्पा उप्पे, ग्राम पंचायत अध्यक्ष छब्बूबाई, शिवाजी राव पाटिल मुंगनाल, अनिल गड्ढे, उच्च प्राथमिकी शाला मुख्य अध्यापिका मार्थाबाई मालगे इत्यादि गणमान्यों के नेतृत्व में संपन्न हुआ। कल मैं सीओ को बात करके, जीओ को बात करके सभी गवर्नमेंट स्कूल में वार्षिक सेमिनार होना चाहिए, ऐसा आदेश मंच पर विराजमान ग्राम पंचायत के नंबर 1 प्लेग्राउंड, इथे प्लेग्राउंड आहे। दूसरा पाहिजे शौचालय आहे का? नसेल तर भाषण करणार। शौचालय, प्लेग्राउंड, कंपाउंड, गार्डन, ये सभी चीज स्कूल में होना चाहिए। ये सभी नरेगा के अंतर्गत पीडीओ कौन है? पीडीओ मैंने सीईओ को ईओ को बोला है, जितने
कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और दिग्गज नेता बीएस येडियुरप्पा और प्रधानमंत्री मोदी के बीच सोमवार को खास जुगलबंदी दिखाई दी। दोनों स्टेज पर एक दूसरे का हाथ पकड़े दिखाई दिए तो पीएम मोदी ने दिग्गज नेता का हाथ जोड़कर अभिवादन भी किया। बता दें, येडियुरप्पा आज अपना 80वें जन्मदिन मना रहे हैं और पिछले दिनों ही उन्होंने सक्रिय राजनीति से पूरी तरह संन्यास लेने का ऐलान किया था। इस मौके पर कर्नाटक पहुंचे पीएम मोदी ने उन्हें खास तोहफा दिया। शिवमोगा में कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने समर्थकों से अपने अपने मोबाइल के टॉर्च दिग्गज नेता के सम्मान में जलाने की अपील की। इसके बाद येडियुरप्पा काफी भावुक दिखाई दिए। पीएम मोदी ने इस दौरान कहा, आज का दिन एक और वजह से खास है क्योंकि कर्नाटक के लोकप्रिय नेता येडियुरप्पा का जन्मदिन है। मैं उनकी स्वास्थ्य और लंबी आयु की कामना करता हूं। उन्होंने आगे कहा कि येडियुरप्पा ने अपना पूरा जीवन गरीबों और किसानों के कल्याण में लगाया। बीते दिनों उन्होंने विधानसभा में जो भाषण दिया उससे लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। इतनी उपलब्धियों के बाद भी वह बहुत ही जमीनी और विनम्र व्यक्ति हैं। उनसे मुझे हमेशा प्रेरणा मिलती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में तेजी से बढ़ते विमानन उद्योग पर प्रकाश डालते हुए सोमवार को कहा, हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई जहाज में यात्रा करनी चाहिए और मैं ऐसा संभव होते देख रहा हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन करने के बाद एक जनसभा में कहा कि आने वाले दिनों में भारत को हजारों विमान चाहिए होंगे। जल्द ही भारत में बने यात्री विमान उपलब्ध होंगे। मोदी ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि एयर इंडिया 2014 से पहले अक्सर नकारात्मक वजहों से चर्चा में रहती थी और कांग्रेस शासन के दौरान उसे घोटालों के लिए पहचाना जाता था। हवाई अड्डे का उद्घाटन कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता एवं 4 बार मुख्यमंत्री रहे बीएस येडियुरप्पा के 80वें जन्मदिन के अवसर पर किया गया। येडियुरप्पा शिवमोगा जिले से आते हैं। शिवमोगा जनसभा में लोगों से येडियुरप्पा के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मोबाइल की फ्लैश लाइट चालू करने को कहा गया। उन्होंने कहा कि कर्नाटक ने डबल इंजन सरकार को बार बार मौका देने का मन बना लिया है। यह मोदी का इस साल राज्य का 5वां दौरा है जहां मई में विधानसभा चुनाव होने हैं। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। इस दौरान सीबीआई ने 5 दिन की हिरासत की मांग की है। मनीष सिसोदिया के वकील ने कहा कि सीबीआई ने जांच में शामिल होने के लिए नोटिस दिया, वो भी तब जब दिल्ली में बजट पेश करने की तैयारी की जा रही थी। उन्होंने सीबीआई से समय मांगा और कल पूछताछ के लिए गए। कल यानी रविवार को कथित आबकारी घोटाले मामले में गिरफ्तार किया गया। सीबीआई ने आरोप लगाया कि मनीष सिसोदिया ने शराब घोटाले में आपराधिक साजिश रची है और सबूतों को मिटाने की भी कोशिश की। उन्हें गिरफ्तार करके सीबीआई हेडक्वार्टर्स में ही रखा गया है। यहीं पर डॉक्टरों की टीम बुलाकर उनका मेडिकल चेकअप भी कराया गया। इधर मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी विरोध प्रदर्शन कर रही है। हालांकि प्रदर्शनकारियों को बीजेपी मुख्यालय तक नहीं जाने दिया जा रहा है। आप मुख्यालय के बाहर बैरिकेड्स की जा रही हैं, जो बीजेपी से कुछ मीटर की दूरी पर हैं। दूसरी ओर आप के नेता और कार्यकर्ता भगत सिंह का गाना बजा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सूत्रों के अनुसार आरोपी अरबाज के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। प्रयागराज पुलिस ने मुठभेड़ में उसे मार गिराया है। जानकारी के अनुसार धुमनगंज के नेहरू पार्क के पास यह मुठभेड़ हुई है। अरबाज उमेश हत्याकांड के वक्त क्रेटा गाड़ी चला रहा था। गौरतलब है कि प्रयागराज के बहुचर्चित राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल की शुक्रवार शाम गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। साल 2005 के बसपा विधायक राजू हत्याकांड में उमेश पाल अहम गवाह थे। इस हत्याकांड के पूर्व सांसद अतीक अहमद आरोपी हैं। पुलिस के अनुसार उमेश पाल पर उस वक्त हमला किया गया जब वह
कहीं से अपने घर लौट रहे थे। जैसे ही वह गाड़ी से उतरे, उस पर एक युवक ने फायरिंग शुरू कर दी, जबकि दूसरे युवक ने उन पर बम बरसाना शुरू कर दिया। यह पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर रमित शर्मा ने बताया था, शाम करीब 5 बजे उमेश पॉल पर हमले की जानकारी मिली थी। जैसे ही वह अपने घर पहुंचे, उन पर हमला कर दिया गया। इस घटना में उमेश पॉल की मौत हो गई है। चिराग पासवान छपरा माझी में नंदकिशोर जिला प्रधान महासचिव के घर पहुंचकर उनकी माता के देहांत पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि नंदकिशोर जी की माता के देहांत पर उनके आवास पहुंचे। उन्होंने वर्तमान सरकार के विफलता पर सवालिया निशाना साधा और कहा कि 2024 में जनता जरूर जवाब देगी। केपी न्यूज के लिए संत कुमार गोस्वामी की रिपोर्ट। अब वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। विगत दिवस सिवान के सिसवान स्थित गुरघाट पंचायत के वार्ड 1, 2 एवं 3, 4 सहित अन्य सभी वार्डों में दिल्ली की संस्था मासूम बेबी केयर फाउंडेशन के सौजन्य के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के मुख्य संयोजक व नेतृत्व में गली गली रोशन योजना के अंतर्गत अलग अलग वार्ड मेंबर्स की उपस्थिति में फ्लड लाइट लगाई गई, जिससे वहां के आसपास के रहने वाले लोगों, गली सड़क व चौराहों पर आने जाने वाले लोगों को रात्रि पहर में आने जाने में आसानी होगी। डॉक्टर अरविंद ने बताया कि मासूम बेबी केयर फाउंडेशन आए दिन बच्चों के स्वास्थ्य व शिक्षा पर काम करते रहती है। साथ साथ हमारे नेतृत्व में सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की समस्याएं दूर करने के लिए तत्परता को दिखाते हुए जाति और धर्म से ऊपर उठकर इस नेक कार्य को अंजाम दे रही है। इसको लेकर वहाँ के सभी लोगों के चेहरे पर खुशी देखने को मिल रही है। इस संदर्भ में मासूम बेबी केयर फाउंडेशन के अभिषेक सिंह व प्रवीण रंजन के प्रति आभार प्रकट किया गया। इस मौके पर शैलेश भारती वार्ड मेंबर, राम अवतार महतो वार्ड मेंबर, सद्दाम हुसैन वार्ड मेंबर, लाडली खातून, छट्टू शाह वार्ड मेंबर सहित सैकड़ों ग्रामीण जनता उपस्थित रहे। केपी न्यूज के लिए संत कुमार गोस्वामी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में नौका विहार एनएफसी भवन में गोरखपुर के सांसद रवि किशन शुक्ला ने कहा कि अमृतकाल का पहला आम बजट 2023-24 का एक लोक कल्याणकारी बजट है। यहाँ गांव के गरीबों, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, शोषित, वंचितों, दिव्यांगजनों के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को सशक्त और सक्षम बनाने वाला बजट है। यह पूरे देश के समग्र विकास को समर्पित बजट है और इस देश का यह पहला आम बजट ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाने पर जोर देने वाला बजट है। यह दुनिया में सबसे तेज गति से देश का विकास कर रही है। देश के विकास की राह दिखाने वाला और भारत को सुपर इकोनॉमिक पावर बनाने वाला बजट है। यह आम बजट 2023-24 का एक एजेंडा है। इस एजेंडे में नागरिकों के लिए बड़े अवसर उपलब्ध कराना है और समावेशी विकास, लास्ट माइल डिलीवरी है और कुल मिलाकर यह बजट आजादी के 100 साल के बाद भी भारत की परिकल्पना का बजट है। फिर भी भारतीय अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर जा रही है और भारत एक नए उज्जवल भविष्य की दिशा की ओर बढ़ रहा है। विकास कुमार भारद्वाज की रिपोर्ट। इसके हेतु मुख्य बिंदु हमने इस गोरखपुर की देवतुल्य जनता के लिए और समस्त पूर्वांचल की जनता के लिए गोरखपुर की अद्भुत मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, स्टिल फोटोग्राफर सबको यहाँ आमंत्रण दिया है। गोरखपुर में एक सांसद के रूप में यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, निर्मला सीतारमण जी हमारी वित्त मंत्री, उन्होंने जो बजट पेश किया समस्त 135 करोड़ के भारत के लिए, जनता के लिए, वो ये है कि अमृतकाल का पहला बजट 2024 और में लोक कल्याणकारी बजट है। ये गांव, गरीब, किसानों और आदिवासियों के, दलित, पिछड़ों, शोषित, वंचितों, दिव्यांगजनों, आर्थिक रूप से पिछड़े तथा मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त, सक्षम बनाने वाला बजट है।
ये ग्राम विकास, कृषि विकास, श्रमिक कल्याण, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, पूर्वोत्तर और पहाड़ी क्षेत्रों सहित पूरे देश को विकास में समर्पित ये बजट है। और ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र ने भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा देश के नागरिकों को सामाजिक न्याय, समानता, समान अवसर उपलब्ध कराने वाला बजट है। देश का 75वां आम बजट ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाने पर जोर देने वाला बजट है और दुनिया को सबसे तेज गति में देश को विकास की राह दिखाने वाला बजट है। भारत को सुपर इकोनॉमिक पावर बनाने वाला, 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी में ले जाने वाला ये बजट है। सर्वस्पर्शी एक समावेशी बजट है जिसको पूरे देश ने स्वागत किया। ऐतिहासिक बजट रहा। मैं पूरा साधुवाद और अपने यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद, निर्मला सीतारमण जी, वित्त मंत्रालय को धन्यवाद देते हुए नागरिकों के लिए एक बड़े अवसर का उपलब्ध कराना आम बजट 2023 और 24 का एजेंडा था। विकास और रोजगार सृजन मजबूत प्रोत्साहन प्रदान करता है। इस बजट की 7 आधारभूत प्राथमिकताएं क्या है? समावेशी विकास, लास्ट माइल डिलीवरी, बुनियादी ढांचा और निवेश, क्षमताओं को उजागर करना, हरित विकास, युवा, वित्तीय क्षेत्रों को मजबूती देना। ये महज 2023-24 के डेवलपमेंट एजेंडा नहीं बल्कि देश के लिए अगले 25 से 50 साल हेतु विकसित अर्थव्यवस्था को बुनियादी रूप रखने वाला एक ब्लूप्रिंट। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बजट के माध्यम से पुरानी टैक्स व्यवस्था को खत्म करते हुए मध्य वर्ग के नौकरी पेशा लोगों को ऐतिहासिक तोहफा दिया। अब नौकरी पेशा लोगों को 7 लाख रुपए सालाना की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। साथ ही टैक्स स्लैब को भी घटाकर आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। आज 27 फरवरी को कमलनगर तालुका कन्नड़ साहित्य परिषद की ओर से कन्नड़ साहित्यिक सम्मेलन किया गया आयोजित। मंत्री प्रभु चौहान ने किया उद्घाटन। कर्नाटक में दिखी पीएम मोदी और येडियुरप्पा की जुगलबंदी, जन्मदिन पर दिया खास तोहफा। शिमोगा एयरपोर्ट के उद्घाटन पर बोले पीएम मोदी, अब हवाई चप्पल पहनने वाला भी करेगा हवाई यात्रा। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट में किया गया पेश, सीबीआई ने मांगी 5 दिन की हिरासत। उमेश पॉल हत्याकांड का आरोपी अरबाज पुलिस के साथ मुठभेड़ में ढेर। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।